حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المرضومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tonight is night of Ashura. We gathered here to remember, remember the sacrifice of a youth whose name is Hazrat Ali Akbar. So for that reason, there are the few ahadith related to the subject of the youth I would like to share with you, because night is dedicated to Hazrat Ali Akbar alayhi salam. One hadith from our first Imam, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. اللهم صل على محمد وآل Where our Imam, محمد. he said, Ma min shayin ahabbu ila Allah min shabbin taib. Nothing is dear to Allah than the repentance of youth. Wow. Of course, if someone is returning to his Allah, correcting himself, refraining himself from all evil, constructing his character, but in the age of 40 or 50 or more, Allah like it. But especially the someone who is young, just 18 or 16 and 17, the one who has lot of opportunity to make a wrong or to disobey the Allah because of the power, strength, time and opportunity. But before I explain this part of the hadith, I would like to share with you one very important point. Why the person he is obedient to Allah and why the another person is disobedient to Allah. The one who is obedient to Allah, he remembers that power, that life, that opportunity, whatever is in his hand, actually it is given by Allah. If you understand that it is given by Allah, so you must spend in the way where He instructed to utilize your power or energy. The one who is disobedient to Allah, actually he does not understand that power has given by Allah. Remember, there are the people when you are saying, please start praying namaz, keep yourself away from the haram and evil.
Be obedient to Allah. Try to understand the Quran Majid. Because in this age he is going to university. See, this is the right time when he is going to university and he is learning. But before I explain this hadith, I would like to share with you another hadith from our first Imam, Amirul Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam said, Inni wajadtu al-ilm fil arba. I found knowledge, it is only in 4 things. Imam is not talking about the subjects of the knowledge, this subject, that subject. Now the 1,000 of the subjects and the title of the knowledge, or the branches of the knowledge. But Imam talk about I found knowledge only in 4 things, 4 base. Number 1, أولها أن تعرف ربك. Wow. Wow. The first part of the knowledge is to recognize, to understand your Lord, your Rabb. So this is the beginning of the knowledge. This is the first stage of the knowledge. This is the base of the knowledge. But before I explain this hadith, another hadith from our 6th Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam, Islam is religion of knowledge and wisdom. In Usul-e-Kafi, the first chapter is known as Al-Ilm wal-Aql. And from that chapter, the first hadith is أول العلم معرفة الجبار وآخر العلم تفويض الأمر إليه. The first stage of the knowledge is to understand your Allah, and the last stage of knowledge is submit yourself to the will of Allah. Wow. If someone is submitting himself toward the will of Allah, now he is not doing anything from his own will. Whatever he is doing from the will of Allah, that is the itaat. Remember, actually, what is life? If someone is speaking, he is alive. If someone is eating, he is alive. Someone has the power, someone has the money, someone is very rich, enjoying his life, attending club. No, this is not life. You know what is actual life is? Hadith from our 6th Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Where Imam he described what is life. What is the life of the earth? What is the life of the person and man? Imam said, Inna hayat al-ard bi hayat al-insan. Certainly, life of the earth is based upon the life of man. If man is there, then there is a life of the earth. Otherwise, life is not there. Life is existing on earth because of the life of the man. Then Imam said, وَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنسَانِ بِحَيَاةِ الْعِلْمِ. You can't say that person is alive. Whether he eats, whether he drinks, whether he moves. Imam said, in hayat al-insan bi hayat al-ilm. Certainly the life of the man is based upon the life of the ilm. If he has the knowledge and the wisdom, that person is alive. Otherwise, consider as dead one. Then Imam said, wa hayat al-ilm bi hayat al-amal. People, they know, they are a scholar, they read the Quran Majid, they read the tafsir. But Imam said, just reading of the book and Quran Majid, it will not make you a scholar. Imam said, Hayat al-ilm bi hayat al-amal. Life of your knowledge is based upon the life of your amal and action. And in the context of this hadith, another hadith where our Imam he said, if someone has the knowledge of something, and if he practiced, if he applied in his daily life, Allah will give him the knowledge of this something which was not learned by him. It's straight from Allah. You don't need to attend any class or lecture or any scholar.
directly because of your amal and action. وَحَيَاةَ الْعَمَلِ بِحَيَاةِ النِّيَّةِ. Wow. And the life of your amal is based upon the life of your niyat and intention. And the intention's life is based upon the life of your khulus. Whether you are sincere or not. Whether purely intended or not. And remember that khulus, what that khulus is? Another hadith from our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. Salawat padhe baaba. हो सकता है मैं किस थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन एक इस सब्जेक्ट को बहुत ही मैं समराइज करते हुए, I'm trying to summarize it. Imam said, "An-nas kullum halikun." Knowledge, it is life. Imam said, "An-nas kullum halikun." All people, they are dead, or they are going to die. Illa al-alimun. Except those who are scholar. Because there is another hadith from our first Imam. Al-ulama baqoon ma baqiyad dar. Ulama and scholar, they are going to remain alive until that world is remained. Now what our Imam said? Al-nas kullum halikun. Everyone is going to die except the scholar. Wal-alimun kullum halikun. All scholars, they are going to die except illa al-amilun. The one who practice what he learned. وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ حَالِكُونَ. And all scholars, they are going to die. إِلَّا الْمُخْلِصُونَ. Except those who are pure. Those who are sincere. وَالْمُخْلِصُونَ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ. And the one who is mukhlis, he is on danger line because shaitan is behind him. But shaitan is unable to hijack him or mislead him. Salawat padega ba awaaz buland. Allahumma salli ala Muhammad. So now we do understand. Imam said, "Ma min shay'in ahabbu ila Allah." Nothing is dear to Allah than the repentance of the youth. Okay, when I will be 40 or 50 or 60 or 70 thereafter, because the life expectancy in Australia, it is more than any country. No. In the young age, if someone is obedient to Allah, he is receiving multiple sawab for it. Then Imam said, another hadith, take the advantage of 5 things before another 5 things. Take the advantage of 5 things before another 5 things. Advantage of life before death. Now you have the opportunity, you are alive, you can do your amal after death if there is a tawfiq for your children. Why you are expecting any tawfiq from your children? Because that children, they are supposed to do 2 kind of the amal. One for themselves, another for yourself. And now the Pedare Buzurgwar and the father, who has not performed his own and he is expecting 2 kind of the amal from his son. Life before death. Health before sickness. Today you are healthy. Now you are able to say your 51 rakat namaz in a day. Khuda na khasta. Maybe time will come. Then you are unable to stand just for 17 rakat. And our lifestyle is totally different from the lifestyle of India and Pakistan. You know, in India and Pakistan, because there is a sitting arrangement in the Imam Bargah, in the Majalis, totally different. For that reason, the one whose age is 80, still he can pray his namaz while he is standing. Look in Western countries, in the age of 50 or 45, there is a back problem, there is a knee problem, that kind of the problem. They cannot sit, or whether they are praying, they are sitting on chair and they are saying their namaz. So remember what our Imam he said, take the advantage of the health before the sickness. And remember, when you are healthy and you perform the more ibadat and amal. Hadith from Masumin, they said if someone is performing more ibadat and amal when he is healthy, and thereafter when he becomes sick
and then he is unable to perform the all amal, suppose namaz shab, suppose dua, suppose tilawat, suppose Quran Majid, suppose another dua and amal, when he was healthy he was doing, but because of the illness now he can offer just 17 rakat namaz. Imam said Allah will give him sawab of the another ibadat which were performed by him when he was healthy. Look, this is the blessing from Allah. Then Imam said, take the advantage of the health and life, take the advantage of the wealth. If you want to help anyone, if you want to spend your money in the construction of the masjid or Imam Bargah, if you want to help any widow woman or the orphan, if you want to pay your home zakat, sadaqah, whatever, you do it today if you have the wealth. Because Khuda na khasta, if there is a poverty, then you will be unable to do it. Then Imam said, leisure time before you are being engaged. Today you have the time. Suppose there is a holiday, we are waiting for you. Oh, now Christmas is coming. Christmas is coming, so that means I have the plan. Okay, I will go to the Gold Coast, I will go this place, that place. Of course you go there. But when you are waiting for any holiday, why you are not waiting for that holiday? That holiday will come, inshallah I will do the ziyarah. That holiday I will spend in teaching Quran Majid. In that holiday, there is my object is that minimum one surah I will teach to my children with the tafsir of Quran Majid. Wow. You can teach it. बहुत खूब. You can spend that time if you are the holiday, for the good cause. Now, last but not least from this hadith, not from whole majlis, Imam said, life before the death. Wow. Now you have the time, you are alive. Before you die, whatever you want to do it, do it. No, already it was done. Youth before the old age. No. Youth before the old age. And what is the duty of the someone who is young and the youth? Remember another hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On the day of judgment, Allah will ask 4 questions from the people. Or the another way that hadith was narrated, people, they will not move until those 4 questions will be asked from them. Number 1, Allah will ask from them about their youth. Where did they spend? Whether in the obedience of Allah or in the disobedience of Allah. Number 2, Allah will ask about the money from where you brought. Number 3, Allah will ask about the money, where did you spend? That was second one, A and B. And the third, Allah will ask about your whole age. But from whole life, especially Allah will ask about your youth. Allah will ask about your age. 60 years, 70 years you spend in this world. How much time from your life it was spent in my obedience? And the another one, Allah will ask from the people about the muhabbat ahlul bayt alayhi salatu wasalam, and especially wilayat amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. एक मर्तबा मिलजुल कर सलवात पढ़िएगा बावाज़े बुलंद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। यकीनन हमारी गुफ्तगू नौजवानों के ताल्लुक से हो रही थी, और कल की गुफ्तगू आपके ज़हनों में महफूज होगी अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से और इताअत खुदा के हवाले से, कि हमेशा हमें अपने रब को, अपने खुदा को याद रखना। इबादत महज इन चंद रकत नमाजों का नाम नहीं है, बल्कि कई मर्तबा तो हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज में भी हमारा खुदा में नहीं याद आता।
नमाज के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, नमाज में खुदा नहीं याद आता। आप ये देखा कितनी बार होता है, हमने नमाज की नियत की कि मैं 3 रकत नमाज मगरिब की पढ़ता हूं, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा, इधर कहते ही मुझे याद आने लगा, अरे भाई अगर कल मैंने अपने गैस का बिल नहीं भरा तो फिर उसके बाद गैस का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। वाह। बिजली का बिल नहीं भरा, फिर उसके बाद उसी बीच याद आता है कि आने वाले ट्यूसडे को दोपहर में बीवी का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, फ्राइडे को बेटे का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, फिर फला इंटरव्यू है, फला चीज है। अच्छा, नमाज का कोई फायदा हो या ना हो, कम से कम इतना फायदा जरूर है कि भूली हुई बात नमाज में याद आ जाती है। वाह 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 वाह। कोई चीज आपको याद ना आए लेकिन भूली हुई बात नमाज में याद आती है। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा अगर ऐसा ही है, भूली बात नमाज में याद आती है, अच्छा भाई वो क्या चाबी कहीं रख के भूल गए, याद ही नहीं आ रही, क्या 2 मिनट में जरा 2 रकत नमाज पढ़ लूं, अभी याद आ जाएगी। वो टिकट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट नहीं, तो देखा आपने भूली बातें। एक जुमला जो नसीहत के लिए अपने बच्चों के लिए, मेरे बुजुर्ग तो जानते ही हैं, वो आपके हवाले ये करना है, हमें नमाज में हर भूली हुई चीज याद आती है, लेकिन नमाज में वो खुदा नहीं याद आता कि जिस खुदा के लिए नमाज पढ़ी जाए। आइए वापस चले। बहरहाल इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू किसी और मौके पे हो सकती, बड़ा मुफस्सल सब्जेक्ट है ये, और इस पर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, लेकिन आइए मुख्तसर करते हुए, हमेशा अपने रब को याद रखना, खुदा को याद रखना, यही है इबादत। मैंने आपसे मिसाल दी थी सुपरमार्केट की। नहीं, आखिर वो इश्क हमारे दिल में नमाज के हवाले से क्यों नहीं पैदा हो पा रहा? 3 दिन पहले जिस जुमले की तरफ आया था और गुफ्तगू अधूरी छोड़ दी थी कि एक मजदूर है, दिन भर मजदूरी करता है, याद आया आपको जुमला? मुकम्मल नहीं कर सका था। मजदूरी करता, दिन भर का थका हुआ, शाम को आया, बेगम पूरी तरह से खातिर तवाज़ो कर रही, हिलने की ताकत नहीं है, ये आदमी नमाज क्या पढ़ेगा? इतना थका हुआ है। और अगर कहीं से मौलवी साहब ने कह दिया कि भैया नमाज पढ़ लेनी चाहिए, कितने थके हुए हो, तो कहेंगे मौलाना साहब आपको जिंदगी के हकायक नहीं मालूम, आपको हमारी सख्तियां नहीं मालूम, जो मेहनत मैंने की वो आप जानते ही नहीं। लिहाजा मौलवी होने का मतलब ये, या तो खामोश रहिए या तो बोलिए, तो वही बोलिए जो हम चाहते हैं। वरना बड़े मसाइल हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में हर तरफ। यानी हमारा पसंदीदा, हमारा महबूब आलिम, हमारा पसंदीदा महबूब नबी, हमारा पसंदीदा महबूब शख्स वही होगा जो हमारी गलतियों का एहसास न दिलाए, हाँ शैतान की तरह गलतियों को खूबसूरत बना के पेश कर। कुरान मजीद में यही तो कहा गया, शैतान की पहचान बताएगी कि शैतान वो है जो कमियों को खूबसूरत बना के पेश कर देता है, जीनत बना के पेश कर देता है, तो उसके बाद अपनी बुराई अच्छाई लगने लगती है। अब देखें आप, थका हुआ नमाज नहीं पढ़ना, वजह है भाई कमजोर हो चुका है, थका हुआ है, इतनी मेहनत करके आया। खुदा ना खास्ता मैं जिस इश्क की तरफ लाना चाहता हूं, देखिएगा, एक दिन जॉब से थका हुआ आया, दरवाजे पे उसने बेल की, बीवी ने दरवाजा खोला, जो हमेशा इस्तेकबाल करती थी कि आइए चाय तैयार है, ये वो तमाम। बीवी के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, 3 बजे बच्चा घर पे स्कूल से आ जाता था। बीवी कहती है आज देर हो गई, 3 घंटे हो गए, अभी तक बच्चा स्कूल से नहीं आया। बच्चा स्कूल से नहीं आया, 3 बजे आ जाता था, 3:30 हो जाने चाहिए थे, 3 घंटे गुजर गए, बच्चा स्कूल से नहीं आया। बीवी परेशान थी, शौहर भी परेशान है। क्या कहती हो, अभी तक स्कूल से नहीं आया? क्या तुमने स्कूल फोन किया था? कहा मैंने स्कूल फोन किया था, कई जगह मालूम किया। अब उसके बाद वो घर में दाखिल नहीं होता, वो घर में नहीं बैठता, वो चाय नहीं मांगता, वो अपना कपड़ा नहीं चेंज करता, कहता मैं अभी आ रहा हूं। बीवी ने कहा अरे एक कप चाय तो पी ले, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, थके हुए भी हैं, इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं? क्या ये सब चीजें बाद में होंगी, पहले मेरे बच्चे की खैरियत मिल जाए। आदमी वो दौड़ा हुआ निकलता है, इधर जा, इस जा, उस जा। मैंने पूछा ए भाई, रोजाना तो तू थका हुआ होता था, तुझमें खड़े रहने की ताकत नहीं थी, आज इतनी ताकत दौड़ने की कहां से आ गई, तलाश की कहां से आ गई, भाग कैसे रहा है? क्या तुमने मोहब्बत नहीं की है? मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है, अगर मोहब्बत होती है तो थकान का पसीना निकल जाता है, ताकत आ जाती है। मैंने कहा ए भाई, खुदा से तो उससे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन कम से कम जितनी हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं उतनी भी मोहब्बत कर लें, तो याद रखें हमारी जिंदगी में कोई भी
नमाज कदा नहीं होगी। सलावत पढ़े बाबा दे इससे बेहतर बुलंदर सलावत पढ़ेगा बाबा दे बुलंद। आदमी को थकन का एहसास नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मोहब्बत कर रहा है। अगर मोहब्बत की जाए तो थकन का एहसास खत्म हो जाता है, बेशक, बल्कि और ताजगी आ जाती है। इबादत के बाद ताजगी आ जाती, ताजादम हो जाता है। बस खुदा का हक तो हमारी औलाद और हमारे बीवी बच्चों से ज्यादा है। मैं कहूंगा कि अगर उसके बराबर भी मोहब्बत कर ली जाए, उसके बराबर भी जितनी औलाद से मोहब्बत की जाती है, तो भी आसान हो जाए। आइए दूसरी मंजिल में चले। अबू अली सीना नाम सुना होगा। अच्छा, मुसलमानों का एक मसला यह है कि जो लोग कुछ नहीं है, किसी क्लास में नहीं आते, वो ऐसे तमाम नामों को जबरदस्त तरीके से याद रखते हैं। कहते हैं अच्छा वो उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कहेगा देखिए अबू अली सीना हमारे पास, सीना तान के, खुद अबू अली सीना इतना ना सीना तानते जितना ये सीना तान रहा है। अबू अली सीना हमारे पास, फला स्कॉलर हमारे पास, फला स्कॉलर हमारे पास। अबू अली सीना जो एक मर्तबा अपने एक स्टूडेंट के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक जगह से रात को सर्दियों में उनका क़याम हुआ। विंटर है, बहुत ठंडा। अब लाहौर की सर्दी भी हमें सर्दी नहीं लगती जब हम कैनबरा से जाते हैं, वरना एक जमाने में लाहौर की सर्दी बहुत लगती थी। हाँ, लेकिन आप सिडनी या ब्रिस्बेन से न जा रहे हो तो, वरना फिर लगेगी वहां की सर्दी। अब आप ये देखिएगा, अबू अली सीना अपने स्टूडेंट के साथ हैं, सर्दी का जमाना, गजब की ठंडक। वो फिजिक्स में छठी क्लास में किसी जमाने में आपने पढ़ा होगा, एक जो सवाल आता था गिव रीजनिंग में, उसमें पूछा जाता था कि सर्द ममालिक में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं। छठी का ही सवाल हुआ करता था, नवी में पढ़ा था। अच्छा, तो फिर उसके बाद हिंदुस्तान में मेयारे तालीम बेहतर है। सलवात पढ़े बाबा दे मोहम्मद। एक मतलब इससे बेहतर बुलंदर सलवात पढ़ेगा। तो उसमें सवाल आता कि भाई सर्द ममालिक में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं, तो जवाब यही था ना, क्योंकि बर्फ हो जाते हैं, दर्जा हरारत जो इतना गिर जाता है उसके नतीजे में। बस ही तो ये जुमला आपके याद रहे फिजिक्स का। फिर उसके बाद मैं वापस चला हूं इस जुमले की तरफ। अबू अली सीना का एक स्टूडेंट है, याद रखें बहुत से लोग जो हैं पैदाइशी दिमाग खराब होता, नहीं पैदाइशी नहीं, बस बहरहाल आसपास के लोग, घर वाले, घराना, वो तमाम दिमाग खराब। और कुछ लोग ऐसे हो तो उनका दिमाग उसके आसपास वाले खराब कर देते। आसपास वाले जो उनके साइड में बैठते हैं, लेकिन साइड में बैठने वाले दिमाग इतना खराब कर देते हैं कि साइड लाइन कर देते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये जरा आप जाके आसिफ जरदारी से पूछिएगा। अब आप ये देखें कि अबू अली सीना का एक स्टूडेंट है। अच्छा, ऐसे लोग कई मर्तबा आते हैं आपके और हमारे पास भी आते हैं। अब अबू अली सीना से उसने कहा, हाँ इल्म का पहाड़, आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े स्कॉलर, आप जैसा तो कोई गुजरा ही नहीं। आप नबूवत का दावा क्यों नहीं करते? आप ऐलाने नबूवत करें तो सबसे पहले मैं आप पर ईमान लाऊंगा, मैं आपका कलमा पढ़ूंगा। अब समझ में आया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की क्या मजबूरी थी। अब उसके बाद जो उन्होंने, खैर वो पूरी तारीख में वो पढ़ने नहीं जा रहा, अब इसने कहा कि आप ऐलाने नबूवत करें तो मैं सबसे पहले कलमा पढ़ूंगा, आपका प्रचार करूंगा, डीवीडी सीडी सब बांट दूंगा आपकी। वो जमाना ही नहीं था। बहन क्या बोली सीना ने कहा, देख जबरदस्ती की बहस न कर, इसलिए कि रसूल इंसान नहीं बनाता, खुदा बना के भेजता। काश उम्मत मुस्लिमा इस राज को नबी के बाद समझ जाती। बहरहाल रसूल खुदा बना के भेजता, उम्मत नहीं बनाती, लोग नहीं बनाते, मैं बन ही नहीं सकता। कहा आप बन ही नहीं सकते, मैं बना के छोड़ूंगा। आप बन ही नहीं सकते, मैं बना के छोड़ूंगा। अबू अली सीना ने मना किया, बहुत मना किया। अबू अली सीना ने कहा अच्छा चुप हो जा, सो जा भाई। कुछ देर के बाद अबू अली सीना ने, रात के 2 बजे होंगे, अबू अली सीना ने कहा भाई जरा एक गिलास पानी देते आना। उस कमरे के अंदर वो है और अबू अली सीना और उनका स्टूडेंट है। कहा जरा पानी लेते आना। उसने कहा जनाब इतनी सर्दी में पानी पिएंगे,
पानी से आपका गला खराब हो जाएगा, पानी से आपको खांसी आने लगी, नज़ला हो जाएगा, पानी पिएंगे तो फिर उसके बाद पानी निकालना भी पड़ेगा। बहुत एहतियात से कह रहा हूं मैं, आपको जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, लिहाजा रहने दिए, पानी छोड़ दिए। मुझे प्यास लगी है, ये पहला मरहला, वॉशरूम जाना बात की बात है। कभी रहने दीजिए, वो बहुत हम ये कह रहे हैं, वो इनकार कर रहा है। हम ऐसे ही बहाने अपने खुदा के साथ करते हैं। इन्होंने कई मरतबा कहा, उसने अलग अलग बहाने ढूंढे, इनकार किया, उनको समझाता रहा, वो अली सीना को टहलाता रहा। वो अली सीना खामोश हो गए। 2-2.5 घंटे गुजरे होंगे, फजर का वक्त हो रहा है। इधर फजर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला। देखिए हम मरबूत हो रहे हैं आज की शब्द से, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल की रिसालत की गवाही दी। इधर मुअज्जिन ने गवाही दी, उधर उसे बाहर से आवाज सुनाई दी कि कोई है किसी चीज को तोड़ रहा है। वो अली सीना ने बिस्तर छोड़ा, कंफर्टर छोड़ा, कंबल छोड़ा, बिस्तर से बाहर निकले, खिड़की जरा सी क्या खोली कि सर्द हवा का झोंका अंदर आ गया। बाहर देखते हैं एक 80 साल का बूढ़ा है और उसके बाद वो लोहे की किसी चीज से बर्फ के टुकड़े कर रहा है, चूर चूर कर रहा है, ताकि उससे थोड़ा सा पानी बन जाए और उससे वो वुजू करके अपनी नमाज फजर अदा कर ले। हमारी फजर कितनी आसान है। वो बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है ताकि उससे वुजू कर ले, पानी बन जाए, वुजू करके अपनी नमाज सुबह अदा करे। अब एक मर्तबा अबू अली सीना ने ये स्पिरिट देखी, ये जज्बा देखा कि बूढ़ा पानी बनाने के लिए बर्फ के टुकड़े कर रहा है। इस बुढ़ापे के अंदर कमरा छोड़कर, राहत छोड़कर आया है ताकि अपनी नमाज अदा कर सके। ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद अबू अली सीना ने जो पानी मांग रहा था, अब इस तरह से नहीं कहा, एक मर्तबा स्टूडेंट का हाथ पकड़ा, बिस्तर से बाहर निकाला, खिड़की तक लाया, कहा मेरी जान ले लेंगे क्या, मैं मर जाऊंगा, इतनी ठंडक है। कहा तू इस जवानी के अंदर ठंडक से मर जाएगा, मैं तुझे बाहर नहीं ले जा रहा हूं, बस खिड़की तक लेकर आए। कहा देख वो सामने 80 साल का बूढ़ा जो बर्फ को पानी बना रहा है ताकि वुजू करके 2 रकअत नमाज पढ़े, कि जिस नमाज का हुक्म खुदा ने दिया और जिस हुक्म को उसके भेजे हुए पैगंबर ने पहुंचाया। और उसके बाद कहा तू मुझसे रिसालत की बात कर रहा था, जिस रसूल ने इससे सैकड़ों साल पहले कहा था कि तुझे फजर की नमाज पढ़नी है, तो क्या यह है रिसालत की ताकत कि सदियों के फासले के बाद अगर पैगाम पहुंच जाए तो फिर उसके बाद इंसान राहत छोड़ देता है और बिस्तर छोड़ देता है और अपनी नमाज अदा करता है। तू मेरे सामने होने के बाद जब मेरे कहे पर अमल नहीं करता तो मेरे बात कैसे अमल करेगा। सलावत पढ़े आवाज़ बुलंद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मर्तबा इससे बेहतर बुलंद और सलावत पढ़िएगा आवाज़ बुलंद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ जी। तो दूसरा एक मसला हमारी जिंदगियों के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड है, तादाद। ऐसा नहीं है कि हम नमाज के लिए अपने बच्चों से नहीं कहते। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान से लेके वो ममालिक के जहां बड़ी तादाद है मोमिन की, वहां वालिदैन कहते हैं बेटा मजलिस में बैठो, आगे बैठो, बात नहीं चल रहे, बेटा आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, तुम बैठो, तो बेटा तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। एक दोस्त दूसरा दोस्त, पूरे कराची की खबर, पूरी दुनिया की खबर, खड़े होके, यहां तक के एक मर्तबा मौलाना साहब ने मसाइब पढ़ने शुरू किए। आज ये हमारे मुल्कों का मसला है जहां आज़ादारी पे बहुत बड़ा हमें नाज है कि इतने आला पैमाने पर की जाती है, लेकिन 60% पब्लिक मसाइब शुरू होने पर इमाम बारगाहों में दाखिल हो रही है। तकरीबन ये सूरत हाल है। तो इसका मतलब ना मजलिस का एहतराम, ना अज़ा का एहतराम, और उस मजलिस और अज़ा का एहतराम नहीं जिस मजलिस के लिए हम ये कहते हैं कि जनाबे सैयदा आती है, उस मजलिस का एहतराम। माशाल्लाह आप सब यहां बैठे हुए, ये आपके लिए नहीं, लेकिन जिन सोसाइटीज में आप ये देख रहे हैं उन्हें बदलिए कि अज़ा की कदर और कीमत को समझे, उसका एहतराम समझे, आने वाली बीवी की अहमियत को समझे, आने वाले इमाम की अहमियत को समझे। अब आप ये देखिएगा, बच्चों से हम कहते हैं बेटा तुम नमाज पढ़ो, बेटा तुम कुरान पढ़ो, बेटा तुम ये करो, बेटा तुम, यकीनन
कुछ माँ बाप हैं जो बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन कुछ हैं जो कह रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। आप कहेंगे कहने वालों को क्यों गलत कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस का हुक्म तो दे रहे हैं लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वाह वाह वाह। आप अंदाजा लगाएं, अक्सर घरों के बच्चे, बहुत से घरों के बच्चों को ये शिकायत है कि हमारे माँ बाप उन बातों की हमसे उम्मीद रखते हैं जो वो खुद नहीं कर रहे हैं। और मोहम्मद और आले मोहम्मद ने हमेशा हमारे लिए, बच्चों के लिए ये मिसाल है। आप सब बड़े हैं, आपके लिए मिसाल नहीं, लेकिन मेरे बच्चे समझ जाएं ताकि ये इशू आसान हो जाए उनके लिए। मिलकर सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मशहूर वाक़या है ना। एक औरत आई रसूल खुदा के पास, बच्चे को लेकर आई। या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा जो है बीमार रहता है, डॉक्टर के पास ले गई थी, डॉक्टर ने कहा कि मीठा न खाए, आप इसे नसीहत कर दें। रसूलुल्लाह ने कहा 3 दिन के बाद लेके आना। 3 दिन के बाद लेके आना। उसने सोचा 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह बड़ी तफसील से, बहुत डिटेल में इसको समझाएंगे। 3 दिन के बाद वो औरत अपने बच्चे की उंगली थामे हुए लेकर रसूल के पास आई और उसके बाद कहती, या रसूलुल्लाह आपने बुलाया था, कहाँ? रसूलुल्लाह ने कहा, ए बेटा, मीठा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ना खाओ। बुढ़िया कहती, बस इसी के लिए बुलाया था? ये एक सेंटेंस, एक जुमला कहने के लिए बुलाया था? अजीजों, हमारे साथ कई मर्तबा मसला होता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक मर्तबा आपने किसी आलिम से, किसी बुजुर्ग से, किसी दीदार से कहा, बताइए हमारे इस प्रॉब्लम के लिए क्या करें? हमने कहा कि आप जो सूरह हाम पढ़ लीजिए। हमने कहा फला आयत पढ़ लीजिए। कहा मौलाना एक छोटी सी आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मसला हल हो जाएगा। मसला यह है कि हमने आयत को छोटी आयत समझ लिया, सूरा को छोटा सूरा समझ लिया, पर कलाम इलाही के असर को नहीं समझते। कई बार होता है इतनी सी याद, अच्छा ये एक जिक्र करूंगा या रहमानो कह दूंगा, मसला कैसी बात कर रहे, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तेरा प्रॉब्लम बड़ा है या खुदा बड़ा है? तेरी मुश्किल बड़ी है या खुदावंद ताला बड़ा, या उसका जिक्र बड़ा, या उसका नाम बड़ा? अब जब इस तरह के एतराज़ात सोसाइटी करने लगी तो मौलवियों ने भी कहा ठीक है, जब एक आयत से, एक सूरत से, मुख्तसर नुस्खे से नहीं तू समझ सकता है तो कहा ठीक। अब आए मौलाना के पास। मौलाना ने कहा सूरह आले इमरान भी पढ़ना होगा, सूरह बनी इसराइल भी पढ़िए, और सूरह ताहा पढ़िएगा, और सूरह फद पढ़ लीजिएगा, मुज़म्मिल और मुद्दसिर। मौलाना ये बहुत बड़ा है, कुछ कम करेंगे आप? कुछ कम कर दें। मसला ये है कि कम है तो मुसीबत, ज्यादा है तो मुसीबत नहीं। अजीज़ान गिरामी, कम है तो मुसीबत, ज्यादा है। बस कुरान मजीद की तासीर और उसके असर को और कलाम मासूमीन के असर को समझे। बहरहाल आइए मैं वापस फिर उसी तरफ आ जाऊं। अब वो जो बच्चे के हवाले से रसूल ने कहा बेटा मीठा ना खाया करो। अम्मा ने कहा ये तो 3 दिन पहले भी कह सकते थे, अननेसेसरी मुझे फिर बुला लिया। 3 दिन पहले भी कह सकते थे। रसूल ने कहा हाँ तेरे ख्याल में दुरुस्त है, 3 दिन पहले कह सकता था, लेकिन 3 दिन पहले अगर कहता तो इस पर अमल नहीं होता। ये हमारे साथ भी है ना जी। रसूल ने कहा अमल नहीं होता। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि 3 दिन पहले जब मेरे पास आई थी तो मैं खुद मीठा पसंद करता हूं और मैं खुद मीठा खाए हुए था। अगर खाऊंगा और उसके बाद कहूंगा कि तू ना खा तो मेरी बात का अमल नहीं होगा, असर नहीं होगा। लिहाजा मैंने 3 दिन तक मीठे को तर्क कर दिया उस वक्त से, और जब मैंने तर्क कर दिया तो अब इस बच्चे से कहा है तो यकीनन तेरा बच्चा नहीं खाएगा। हम झूठ छोड़ दें, उसके बाद अपने बच्चों से बोले बेटा झूठ ना बोलो, तो हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। बल्कि हमारा मसला तो ये होता है कि किसी ने फोन किया, भाई आप मौजूद हैं, बच्चे ने फोन उठाया, कहा पप्पा, अब तो आप अंदाजा लगाएं, आपको खुद अंदाजा हो रहा है कि सामने वाला चेक कर रहा है, सच और झूठ पता चल जाता है। अच्छा पूछा आप कौन हैं? आपने फोन किया, सामने वाले ने उठाया और पूछा, घर वाले ने, बीवी ने या बच्चे ने पूछा आप कौन है? आपने जैसे ही काम फला है, तो अगर काम का बंदा है तो कहा ठीक है पप्पा हैं। ये पूछा इसीलिए जा रहा है, और जैसे ही कह दिया आपने कि हम फला हैं और काम का बंदा नहीं, कह दो नहीं है, कह दो नहीं है। अच्छा बच्चे भी बड़े सादे होते हैं। इधर आपने कहा कह दो नहीं, तो उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है? कहा पप्पा कह रहे हैं पप्पा घर में नहीं। पप्पा कह रहे हैं पप्पा घर में नहीं है। भाई ये मसले हमारी जिंदगी के अंदर है, यानी बच्चे को झूठ की तरबियत। अब वो तो टल गए फोन वाले, लेकिन अब बच्चे ने हमारा गिरबान पकड़ लिया है और उसके बाद गले पड़ गया बाबा जान आप मुझसे कहते हमेशा सच बोलो, या आपने तो अभी मुझे झूठ बोलने के लिए कहा। देखो आप बड़ों के मामले में नहीं बोलते, हम बड़े हैं।
यानी जो जितना बड़ा होता है वो पहचाना कैसे जाता है? खुदा की नाफरमानी से। इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप नाफरमानी कीजिएगा, अभी छोटे लिहाजा इताअत कीजिए, अभी छोटे लिहाजा अल्लाह का कहना मानिए, अभी छोटे लिहाजा नमाज पढ़िए। बच्चों के साथ ये मसला, आइए मैं तरबियत की बात कर रहा हूं, तरबियत की बात। अल्लामा काशिफुल गिता बहुत बड़े आलिम दीन है, नजफ में रहते हैं, इस वक्त नजफ नहीं रहते थे, लेकिन हमारे उलमा जिंदा है ना, तो नजफ में रहते हैं। नमाज शब का वक्त होता है, अपने बच्चे को उठाते हैं, बेटा चलो नमाज शब के लिए, हरम में मौला के पढ़ेंगे। बेटा कहता बाबा आप जाइए मैं आता हूं। काशिफुल गिता ने कहा नहीं बेटा मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। यह है तरबियत। काशिफुल गिता ने बेटे को उठाया, साथ लेके चले, नजफ के हरम की तरफ बढ़ रहे, रास्ते में गजब की ठंडक है दीदो। काशिफुल गिता ने देखा एक बूढ़ा फकीर कंबल डाले हुए रास्ते में बैठा हुआ है कि गुजरने वाले लोग कुछ सिक्के उसे दे दे, उसका खर्च चल जाए, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। काशिफुल गिता ने नमाज शब के वक्त रास्ते में एक बूढ़े फकीर को जो ठंडक में ठिठुर रहा था उसे बैठा देखा। मिसालें अपने बच्चों को दीजिए तो दीन समझेंगे। एक मर्तबा काशिफुल गिता ने कहा बेटा इस बूढ़े को तुम देख रहे हो? कहा हाँ बाबा जान मैं देख रहा हूं। काशिफुल गिता ने कहा यह बूढ़ा इस वक्त आया कि जबकि लोग इधर से गुजर नहीं रहे होते हैं, दिन भर बैठा होगा तो कितना मिलेगा? काशिफुल गिता बच्चे को नमाज की अहमियत बता रहे थे। कहा बाबा जान मुमकिन है शाम होते होते 5 दीनार भी पा जाए, मुमकिन है उसे 1 पैसे भी ना मिले। काशिफुल गिता ने कहा अजीब बात है, अजीब बात है। आराम छोड़ा, राहत छोड़ी इस उम्मीद पर कि हो सकता है शाम होते होते 5 दीनार मिल जाए, और इस बात का भी चांस है कि शाम होते होते कुछ ना मिले। एक मर्तबा काशिफुल गिता ने कहा इंसान उस चीज के लिए चला आता है जहां दोनों चीजों के चांसेस इक्वल है, मिले भी ना मिले। लेकिन जब इबादत के लिए आता है तो खुदा का भी वादा, सच्चे नबी का भी वादा, सच्चे इमाम का भी वादा कि आओगे तो वापस खाली हाथ नहीं पलटाएंगे, महरूम नहीं पलटाएंगे। लेकिन अजीब बात है जहां चांसेस हैं वहां तो के लिए तैयार है, लेकिन जहां यकीन है वहां निकलने के लिए नहीं तैयार है। सलावत पढ़े एक मर्तबा इससे बेहतर और बुलंद तर सलवात पढ़ेगा बाबा मैं कहूंगा बच्चों आपकी नमाज इंशाअल्लाह आज के बाद इस शब आशूर हजरत अली अकबर को बेहतरीन खिराजी होगा कि आप अपनी नमाजें न तर्क कीजिएगा, वरना आजादारी का मौसम बकिया मौसमों की तरह महज मौसम रह जाएगा। हमने इसे मौसम याद कर रखा। ये इबादत का जमाना, इताअत का जमाना, अहले बैत से जुड़ने का जमाना, और वो जमाना कि एक बार अहद कर लिया तो फिर न तोड़ने का जमाना है। इस अहद को बाकी रखना, इस प्लेज को बाकी रखना। मैं तरबियत की बात कर रहा हूं। आइए एक जुमला और सुनाता चलूं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके कद कितने बड़े। सैयद रजी सैयद मुर्तजा ऐसे ही नहीं बनते। वो वाकया पूरा सुना हुआ ना आपका कि शेख मुफीद उन्होंने ख्वाब देखा कि जनाब सैयद आई है, कहती मेरे बच्चों को पढ़ाओ। दूसरी सब सुबह जो है मजलिस दर्स में बैठे हुए एक सैदानी आती है 2 बच्चों को लेकर हवाले करती है, कहती शेख इन बच्चों को पढ़ाओ। तो आपकी समझ में ख्वाब आ गया। वाह। लेकिन ये बच्चे कौन है? अंदाजा लगाए। ये बच्चे जो सैयद रजी और सैयद मुर्तजा हैं, इनके लिए मिलता है कि छोटे थे। एक दिन माँ ने कहा बच्चों मेरे पास एक इनाम है, एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। देयर इज वन गिफ्ट फॉर यू बट यू आर 2। अब 2 बच्चे हैं, मैं किसी एक को दे सकती हूं, और ये ऐसी गिफ्ट है कि जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड भी नहीं किया सकता। मैं उस बच्चे को दूंगी कि जिसने कोई वाजिब छोड़ा ना हो, अभी बालिग नहीं हुए, कोई वाजिब नहीं छोड़ा, नमाजें पढ़ रहा हो, रोजा रख रहा हो, इस तरह की जो कुछ वाजिब आते हैं कंडीशंस के साथ होते हैं ना, वो तमाम कर रहा हो। दोनों बच्चों के हाथ उठ गए, गिफ्ट एक। लेकिन हकदार 2। मां ने कहा मैं ये गिफ्ट उसे दूंगी कि जिसने कोई मासियत नहीं की होगी, गुनाह नहीं किया होगा, गुनाह कबीरा नहीं किया होगा। दोनों बच्चों ने हाथ उठाया। इस तरह शीयत पहुंची आप तक। इमाम मासूम की तो बड़ी हैसियत है। बेशक बेशक। अब जो हाथ उठाया, मां ने कहा बच्चों गिफ्ट एक है,
तुम दो हो, मैं किसे दूं? फिर अगला सवाल किया, ए बच्चों, मैं उसे दूंगी कि जितने मुस्तहब मैंने बता दिए और जो तुम्हारे इल्म में आए उन तमाम मुस्तहब पर तुमने अमल किया है। एक मर्तबा फिर उन दोनों बच्चों के हाथ उठ गए। मां ने कहा गिफ्ट एक है, बच्चे दो हैं और उसके बाद हकदार दो हो गए, मुस्तहब भी सारे अंजाम दे। हम तो छोड़ दे, मुस्तहब है छोड़ दो, मुस्तहब है छोड़ दो। आइए एक जुमला कहूंगा, मौलाए कायनात फरमाते हैं मुस्तहब छोड़ता है जो, उसमें हिम्मत पैदा होती है वाजिब छोड़ने की। जो मुस्तहब छोड़ता है उसे वाजिब छोड़ने की हिम्मत पैदा होती है। दूसरी जगह इमाम फरमाते हैं मुस्तहब अंजाम दिया करो ताकि तुम्हारे वाजिब में अगर कोई कमी रह गई है तो मुस्तहब के जरिए से उस कमी को पूरा किया जाए, यह है मुस्तहब। दूसरी जगह मासूम और फरमाते हैं, बाजीजों हम कहते हैं तो मकरूह है, क्या फर्क पड़ता है? इमाम फरमाते हैं कि मकरूह न किया करो, इसलिए कि अगर मकरूह करते हो तो हराम करने की हिम्मत पैदा होती है। देखा आपने, इसलिए कि नाफरमानी का जज्बा पैदा होता है। मुस्तहब, फिर दोनों ने हाथ उठाया। फिर मां ने पूछा तो बच्चों से कहा कि बच्चों तुम में से जिसने मकरूह नहीं किया होगा तो मैं उसे गिफ्ट दूंगी। सैयद मुर्तजा का हाथ उठा रहा, सैयद रजी का नहीं उठा। एक मर्तबा मां ने वो गिफ्ट दे दी। अंदाजा लगाया कि ये हमारे उलमा और मुज्तहिदीन है जिनका बचपन ऐसा कि जिनकी मां ऐसी तरबियत करती है कि बच्चे मकरूह तक नहीं अंजाम देते, और हमारा आलम यह है कि हराम अंजाम दे रहे हैं, वाजिब तर्क कर रहे हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं। ए अजीजो, हजरत अली अकबर से मंसूब रात है। आइए एक और जवान बेटी की बात करें जिसका नाम हजरत ईसा है। मां की वफात हो जाती है, वफात के बाद अपनी मां की रूह से गुफ्तगू करते हैं, अम्मा अगर खुदा आपको जिंदगी दे दे। नजफ का वाकया, वो अली सीना का वाकया सुना है, उसी के बैकग्राउंड के अंदर, अम्मा खुदा अगर आपको जिंदगी दे दे तो आप कौन सा अमल करना चाहेंगी? मां ने कहा अगर जिंदगी मिल गई, फैसला तो खुदा का है, जिंदगी मिल गई तो मैं दो अमल करना चाहूंगी, गर्मियों का रोजा, सर्दियों की नमाज शब। गर्मियों का रोजा, सर्दियों की नमाज शब। हाँ अजीजो, आज की शब हजरत अली अकबर से मंसूब। वो जवान कि जिसकी अजान से करबला का आगाज होता है। मैं यहां पर अक्सर कहा करता हूं, उलमाए किराम, हमारी सोसाइटी में बच्चा जो है सालगिरह, उसकी बर्थडे मनाई जाती है, फला चीज मनाई जाती है, फला चीज। उलमाए किराम कहते हैं अज़्म ने बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए जब बच्चा बालिग हो तो एक जश्न मनाइए घर में, उसे अहकाम और दीन की बातें बताइए और उसके बाद बताइए आज से तुम पर ये जिम्मेदारियां आ रही हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जश्न बालिगा मनाने का कोई रिवाज नहीं। जश्न, इसको जश्न बाल बुलूग या जश्न तकलीफ कहा जाता है क्योंकि मुकल्लफ हो जाता है, अब उस पर वाजिबात आ जाती है। इराक में बुजुर्ग उलमा किया करते थे, ईरान में भी बुजुर्ग उलमा करते, आज तक ये रिवाज है। यानी लड़की 9 साल की हो गई, एक आलिमा, एक फकिया को घर पे दावत दी जाती है, मोमिनात को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी तकरीर होती है जिसमें बताया जाता है कि अब इस बच्चे की क्या जिम्मेदारियां हो गई हैं। लड़का बालिग हो जाता है 15 साल या दूसरी 2 शराइत के साथ, तो फिर उसके बाद उस जश्न में उसे बताया जाता है, यानी एक सेलिब्रेशन भी हो रहा है, एहसास जिम्मेदारी भी दिया जा रहा है कि अब इसके बाद जिम्मेदार हो गए। नहीं, एक जुमला यहां पर और कहता हुआ चलूंगा। आपने आयतुल्लाह मोहसिन हकीम का नाम सुना, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मर्जा, जिस घर से 69 शहादतें, उसका नाम है मोहसिन हकीम। जिसके बेटे शहीद, जिसके नवासे शहीद, जिसके दामाद शहीद, जिसके पोते शहीद, वो मोहसिन हकीम के जिसके अपने घर में एक करबला है, जिस मोहसिन हकीम के घर में एक करबला मौजूद है, इतनी शहादतें मौजूद। वो मोहसिन हकीम अपने बच्चों को बहुत छोटे होते थे हौजे भेज देते थे, और बच्चा जब 10 साल का हो जाता था तो सर पे अम्मामा रख दिया जाता था, कांधे पे आबा डाल दी जाती थी, सर पे अम्मामा रख दिया जाता था, कांधे पे आबा डाल दी जाती थी। ये क्यों किया जाता था? क्या इसलिए किया जाता था? उनसे पूछा कि आगा आप अपने बच्चे को इतनी कम उम्री में अबा और अम्मामे का बोझ दे देते हैं, कि अमामा और अबा इसका बोझ नहीं है बल्कि ये जिम्मेदारी का एहसास और शऊर उसके हवाले कर रहा हूं। क्या ये मेरा बच्चा अगर अम्मामा रख लेगा, अबा रख लेगा, तो उसके बाद उसे एहसास हो जाएगा कि अब उसकी जिम्मेदारियां क्या, कोई गलत नहीं करेगा। बाजीजो, इसीलिए तो इस्लाम ने कहा कि बच्ची 9 साल की हो जाए तो उस वक्त उस पर हिजाब वाजिब
वाजिब हो जाता है, लेकिन उससे पहले बच्ची को हिजाब की आदत दिलवा दी जाए ताकि मसला ना हो। मेलबर्न में एक खातून है, वो कहने लगी कि मेरी बच्ची स्कूल जा रही थी और बालिग हो रही है। अब मैंने अपनी बच्ची से कहा, बेटा कल से आपको स्कार्फ पहन के जाना है क्योंकि आप पर हिजाब वाजिब हो गया। तो वो लड़की कहती है कि इतने दिनों से किंडर में गई, मैंने हिजाब नहीं किया था, मैं पहले साल में थी हिजाब नहीं किया, दूसरे साल और तीसरे साल में हिजाब नहीं किया, अब करूंगी तो लोग कहेंगे कि क्या कर रही है, ऑकवर्ड फील करूंगी। बाजी दो, ये बच्ची का भी मसला है, ये माँ का भी मसला है। पाकिस्तान से आए थे, इंडिया से आए थे, तो वहां के तो हमने चादर भी उतार दी थी, वहां का दुपट्टा भी उतार दिया था, अब यहां का लिबास पहना। इतने दिन ये पहन के चले, लेकिन अब हिजाब पहन के चलेंगे तो शर्म आएगी। अजीजों, अजीब बात है, हिजाब पहनने में शर्म आ रही है, बेहिजाबी में शर्म नहीं आ रही, बेहिजाबी में शर्म नहीं आ रही। अच्छा एक बात कहूं कि जिस मुल्क में कानून भी बन गया कि हिजाब पर पेनाल्टी लगेगी, आप अपने हिजाब के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। कल फ्रांस में एक फैसला आया है, पता है ना, वहां पेनाल्टी है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। एक औरत हिजाब के साथ ड्राइविंग कर रही थी, हिजाब के साथ ड्राइविंग कर रही थी, उस औरत को पुलिस वाले ने पकड़ा, पेनाल्टी लगाई। पेनाल्टी का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं था, 250 पाउंड तक है वैसे टोटली, लेकिन उसको जो पेनाल्टी लगाई सिर्फ 18 पाउंड, 18 पाउंड के इक्विवेलेंट उसको पेनाल्टी लगाई गई। अब जो पेनाल्टी लगाई गई उसको सिर्फ इसलिए कि अगर आज हम सक्सेसफुल हो गए, एक प्रेशर बनाना है हिजाब के खिलाफ। यहां पे जुमला, बेदीनी दीन पर पहरे लगाकर प्रेशर बना रही है, दीदार दीदार बन के उस प्रेशर को खत्म कर दें। उस औरत और उसके शौहर ने केस फाइल किया। आपको हक है इन ममालिक के अंदर अपनी बात को रेस तो कीजिए। कई मरतबा कहा जाता है ये बातें कह रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। कई मरतबा वो लोग कहते हैं कि जो हमारे बहुत बाद वेस्टर्न कंट्रीज में निकले, और मैं माशाल्लाह 90s से पढ़ रहा हूं, लिहाजा वहां के हालात से बाखबर हूं। अब आप ये देखिएगा, और ऐसी हजारों मिसालें मौजूद है। लेकिन उस औरत ने, उसके शौहर ने क्या किया, उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दिया, इस बात को, इस पेनाल्टी को चैलेंज किया, और उसने साबित किया कि देखिए हिजाब के साथ तो थी, आंखें खुली हुई हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर सामने की ट्रैफिक और गाड़ी को देख रही, एक्सीडेंट के कोई चांसेस नहीं। उसने ये प्रूफ कर दिया। अब वहां से ऑर्डर आ गया कि इसके ऊपर पेनाल्टी जो लगाएगी वो गलत है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके बाद भी उस पेनाल्टी को उसके ऊपर बाकी रखा, कल तुम्हें देना पड़ेगा। वो जिद और हठधर्मी। इन्होंने दोबारा कोर्ट में रुजू किया। अब दोबारा कोर्ट में रुजू किया तो कल कोर्ट से फैसला आया कि वो उसके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है कोर्ट के फैसले को नहीं माना, लिहाजा उनके ऊपर चार्जेस आयद होते हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की। हुआ या नहीं? मसला हम लोग कई मरतबा कहते हैं क्या, कौन इस झंझट में पड़ेगा, कौन इस मुश्किल में पड़ेगा, कौन इस परेशानी पड़ेगा, चलो किनारे हो जाते, चलो किनारे हो जाते। नहीं, जिस औरत को हिजाब की बुनियाद पर यूरोप में कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद ऐसे लोग भी सामने आए। ईरान जैसा मुल्क आया, ईरान ने कहा कि अगर हिजाब की बुनियाद पर उस औरत को शहीद किया गया है, तो वो औरत जो यूरोप में रहती है और अपने हिजाब की हिफाजत करना चाहती है, उसे हक तालीम नहीं मिलता, तो उस शहीद औरत के नाम पर ईरान में उसे स्कॉलरशिप पूरी मिलेगी, आए और एजुकेशन हासिल करे। ये अमली पैगामात है। आप देखें फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा ताजिर है जिसकी आगाए अयतुल्लाह जवादी अमूली ने तारीफ की है, जिसने कहा कि ईयरली मैं 1 लाख यूरो खर्च करने के लिए तैयार हूं, हिजाब पहन के औरतें निकले, उनकी पेनाल्टी और फाइन मैं दूंगा। जज्बा है ना, आप अंदाजा लगाएं। ये वो जज्बे देखिए, इन जज्बों की कदर करना। उस औरत ने मुझसे बताया, मेरी अहलिया से बताया जो मेलबर्न के अंदर है, उन्होंने कहा मेरी बच्ची बालिग हो गई, मैं कल भेजना चाहती थी स्कूल, मैंने कहा हिजाब के साथ जाओगी, तो बच्ची ने कहा कि अभी रहने दीजिए, बाद में कर लूंगी। जो हमारा सारा मामला, अभी नहीं बाद में। उस बच्ची ने कहा मैं बाद में हिजाब कर लूंगी। मां ने कुछ देर के लिए सोचा,
ठीक है आज इसकी बात सुन लेती हूँ, बाद में वो कर लेगी, परसों से कर लेगी। फिर उसने सोचा ये बच्ची फिर कहेगी कल, और वो कल कभी नहीं आएगा। उसने कहा बेटा अब वो कल की बात नहीं, तुम्हें आज ही हिजाब करके जाना है। वो बच्ची गई, पहले दिन तो सख्त था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो बच्ची हिजाब के साथ जा रही है। बाजी जाने ग्रामी, मैं आपको बताऊं कई मर्तबा होता है हमारी बच्चियां छोटी हैं, कोई मसला नहीं, 4 साल की बच्ची है, 4.5 साल की बच्ची है, अगर मर्दों में बैठ जाती है क्या मसला है, हाथ मिला लेती है क्या मसला है। नहीं अजीजों, मैं अफ्रीका युगांडा में था, छोटी सी बच्ची थी, एक ईरानी फैमिली की बच्ची थी। बाजीजों वो नमाज और प्रोग्रामों में लाया करते थे। हाँ उस बच्ची ने इसकात भी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो 3 साल की बच्ची थी जब सफ में आई तो उसके बाद हाथ मिलाने के लिए मैंने उसको कुछ समझा दिया कान में, बच्ची समझ गई। उसके बाद आती थी, किनारे खड़ी हो जाती थी, मजालिस में शरीक होती थी। एक मर्तबा 2-4 दिन के बाद फिर बाप के साथ आई, बाप ने कहा बेटा हाथ नहीं मिलाया। वो बच्ची खुद कहती बाबा हाथ नहीं मिलाऊंगी इसलिए कि हराम है, मुझे पता चल गया इतनी छोटी उम्र में अगर तरबियत कर दें तो बड़े होने के बाद मसला नहीं होगा, बस वापस आ जाएं। मैंने आपकी जहमत तमाम की। बात अजान की हो रही है, अजान की हो रही है। अजीजों हमारा दीन हमने कितना तबाह कर लिया। हजरत अली अकबर के नाम से आज जमा हुए, अंदाजा लगाएं एक मुसलमान का पड़ोसी एक यहूदी था, एक मुसलमान का पड़ोसी। याद रखें कि दुनिया भर में आज कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान की तफसीर पढ़ी जा रही है, नहजुल बलागा पढ़ा जा रहा है। हम नहीं पढ़ रहे, बल्कि मेरे मोहतरम ने बताया, रिफत भाई ने बताया कि उनकी जहां वो दफ्तर में काम करते हैं वहां एक गैर मुस्लिम क्रिश्चियन रेशियन है, लेकिन उसके पास कुरान मजीद का नुस्खा कहता है जब मैं पढ़ लेता हूं तो सुकून मिलता, जिस दिन नहीं पढ़ता हूं तो बेसुकूनी की कैफियत रहती। अजीब बात है, गैर मुस्लिम कहे कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है, हम कहते हैं कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं। अंदाजा लगाइएगा मैं जिस चीज की तरफ आना चाहता हूं, स्टडीज हो रही हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं तेजी से, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्टर्न कंट्रीज इट इज इस्लाम, तेजी से बढ़ रहा है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अल्लामा तबातबाई एक वाकया नकल करते जिसे आगा मुताहरी ने लिखा हुआ है कि एक यहूदी था, उस यहूदी की लड़की को इस्लाम बहुत अच्छा मजहब लगने लगा, स्टडी कर रही है, इस्लाम पढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे इस्लाम से नफरत हो गई। नफरत का सबब भी सुनिए, कुछ दिनों के बाद नफरत हो गई। वो यहूदी उस मुसलमान के जो पड़ोस में था उसका दरवाजा नॉक करता है, दरवाजा खुला का तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया। उस मुसलमान ने कहा मेरे लिए गिफ्ट कहां, तुमने बहुत बड़ा एहसान मुझ पर किया है, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, ये भी नहीं किया कि उसके बाहर की घास वगैरह काट दी हो फ्रंट यार्ड की, तुमने मुझ पर जो एहसान किया वो बहुत बड़ा है। कहा क्या हुआ? कहा मेरी बेटी पूरी तरह से इस्लाम कबूल करने पर तैयार थी, बहुत समझाया नहीं मानी थी, लेकिन ये तुम्हारी अजान की वजह से उसने इस्लाम छोड़ दिया है। अजान की वजह से? कहा इसलिए कि उसे अजान बहुत पसंद थी, लेकिन जिस तरह से तुम अजान दे रहे थे उससे उसके कान में तकलीफ और अजियत होने लगी कि किस तरह की अदायगी थी, इसीलिए इस्लाम में हुक्म दिया गया कि कुरान को अच्छी आवाजों के साथ, सही तलफ्फुज के साथ, सही मखरज के साथ अदा किया जाए, अजान को सही मखरज के साथ अदा किया जाए। हजरत अली अकबर की रात है, अपने बच्चों को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। बाजीजों याद रखें सही मखरज से अदा की जाए ताकि अजान भी सही हो, नमाज भी सही हो, इबादत भी सही हो। बाजीजों बड़ी अच्छी बात कही शकील शमसी ने, वो कहते हैं कि थी ये लैला की दुआ ऐसा मुअज्जिन हो जाए, थी ये लैला की दुआ ऐसा मुअज्जिन हो जाए, शब के सन्नाटे में तकबीर कहे दिन हो जाए। याद अकबर में अलसुम अज़ां दिलवाना, याद अकबर में अलसुम अज़ां दिलवाना, कोई बच्चा अली अकबर का जो हमसिन हो जाए। हाँ जीजो, या दूसरी जगह 4 मिसरों में कहते हैं कि सूरज तो चाहता था अंधेरों में गुम रहे, सूरज तो चाहता था अंधेरों में गुम रहे, अकबर ने दी अजान तो मजबूर हो गया। अजीजों ये अकबर की अजान है कि जिससे करबला में सोबनम उदार हुई। मैं करबला की तारीख को मुख्तसर करता हूं, जो दीदारी की तारीख है, तो एक जुमले में कहता हूं करबला है क्या जो बेटे की अजान से शुरू हुई, बाप की नमाज पे तमाम हो गई। बेटे की अजान से शुरू हुई, बाप की नमाज पर तमाम हुई। करबला यही तो है ना। अरे लैला की अकबर की अजान से
शुरू हुई, हुसैन की नमाज असर पे तमाम हो गई। आज की रात लैला के अली अकबर का मातम करने के लिए आए। लैला का अली अकबर कि जिसे जैनब ने अपने पास ले लिया था और जैनब जिसकी तरबियत करती थी वो पाल है। जैनब जिसे औन और मोहम्मद से ज्यादा अली अकबर अजीज है। अजीजों, करबला के शहीदों में यकीनन हजरत अली अकबर हजरत अली असगर से पहले यानी थर्ड लास्ट शहीद के तौर पे गिने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब सुबह आशूर नमूदार हुई है और वहां से तीर चला तो हुसैन ने कहा था, या बुनैया तकद्दम, ए मेरे लाल अली अकबर जाओ। जैसे ही आपने कहा ए मेरे लाल अली अकबर जाओ, असहाब आगे आए, का मौला हमारी गर्दनें कलम कर दीजिए, ये तलवारें, ये क्या हमारी जिंदगी में हम शक्ल रसूल हम शक्ल नबी को आप मैदान में भेज रहे। अली अकबर जब जब जाना चाहते थे असहाब रोक लेते थे, अंसार रोक लेते थे। हाँ, जब वक्त आया तो अली अकबर आए, कहा बाबा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा लाल, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकता, मैं सुबह भी तुमको इजाजत दे रहा था, लेकिन जाओ अपनी फूफी से इजाजत ले लो, क्योंकि जैनब का तुम पर बड़ा हक है। आए, कहा फूफी अम्मा मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। जैनब ने कहा लाल, क्या इसी दिन के लिए पाला था? अरे मैंने इसी दिन के लिए तुम्हारी तरबियत की थी कि मैं तुम्हें खून में नहाता देखूं। कहा फूफी अम्मा अगर देर कर दी तो कहीं मेरे बाबा को कोई जख्म लग गया। ए फूफी अम्मा, कल कयामत के दिन जब दादी का सामना हो और वो पूछेंगी, ए जैनब तुझे तेरा अकबर प्यारा था, मेरा हुसैन नहीं प्यारा था, तो क्या जवाब दीजिएगा? भाई ये सुनना था। जैनब ने कहा लाल अकबर जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी। बाजीद अकबर आए, लैला रुखसत कर चुकी थी, जैनब ने इजाजत दी, हुसैन ने रुखसत किया। बाजीदो जब अली अकबर को रुखसत किया तो ये जुमले कहते हैं, परवरदिगारा गवाह रहना, मैं अब उसे भेज रहा हूं जो शक्ल में, जो रफ्तार में, जो गुफ्तार में तेरे नबी से मिलता था। अरे जब मैं तेरे पैगंबर की जियारत का मुश्ताक होता था तो अकबर के चेहरे पे देख लिया करता था। ए लाल अकबर जाओ, मक्तल में जाओ। वो हुसैन ने अकबर को घोड़े पर सवार कर दिया, अकबर चले मक्तल के लिए। बाजीदो अकबर ने क्या महसूस किया कि कोई पीछे पीछे चला आ रहा, कोई पीछे पीछे चला आ रहा। मुड़ के देखा, अरे बूढ़ा बाप है, गिरता पड़ता चला रहा। एक मर्तबा अकबर घोड़े से कूद पड़े, दौड़े हुए आए, कहा बाबा मुझे रुखसत कर चुके, अब क्यों पीछे पीछे आ रहे? कहे लाल, काश तुम साहिब औलाद होते तो बाप के दर्द को समझते। ए लाल, जब तक मक्तल में नहीं पहुंच रहे मुड़ मुड़ के अपनी शक्ल दिखाते रहना ताकि बाप तुम्हें देखता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अकबर मुड़ मुड़ के जियारत करा रहे हैं, हुसैन अकबर के चेहरे की जियारत कर रहे, यहां तक के मक्तल में पहुंच गए। हुसैन कुर्सी पे बैठ गए। लैला कहती है फिजा देखो मेरे अकबर का क्या हाल है। वह फिजा क्या करती, हुसैन के चेहरे पर देख रही है, हुसैन के चेहरे के आसार को देख रही है। यहां तक के अजीजो अकबर का एक नामी ग्रामी पहलवान से मुकाबला हो रहा है। वह हुसैन को फिजा ने देखा कि चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। कहा आका मेरे शहजादी की खैर तो है। कहे फिजा जाके लैला से कहो अकबर के लिए दुआ करे कि अकबर को दुश्मन पर कामयाबी हो। वह लैला ने हाथ बुलंद किए, यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दे। बाजीदो इधर लैला की दुआ तमाम नहीं, उधर अकबर को गलबा हासिल हुआ, कामयाब पलटे। बाजीदो आके कहते बाबा क्या पानी की सबील हो सकती है? याद रखें अरबी में सबील के माने रास्ते के हैं, पानी पिलाने के नहीं है, घड़े में पानी रखने के नहीं है, मशकीजे में पानी रखने के नहीं। सबील के माने रास्ते के। का बाबा क्या पानी का कोई रास्ता निकल सकता है, कोई सबील हो सकती? आज मैं कहूंगा हे अकबर तुमने आशूरा को बाप से सवाल किया था, बाबा पानी की सबील हो सकती है? दुनिया में हर जगह जहां हुसैन के आजादार हैं वो पानी की सबील लगाते। हे अकबर ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन ने कहा लाल अकबर पानी का एक कतरा नहीं है, अपनी जबान मेरे दहन में रख दो। अकबर ने जबान रखी, खींच ली। बाबा आप मुझसे भी ज्यादा प्यासे, बाबा आप मुझसे भी ज्यादा प्यासे। हुसैन ने कहा लाल तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, दादा तुम्हें सैराब करेंगे, ये मेरी अकीद की अंगूठी अपने मुंह में रख लो। मैं कहूंगा हुसैन अरे जरा ख्याल करना कहीं लैला देख न ले
की जालिम ने अरे ताक कर एक बर्छी का फल मारा, अकबर त्योरा कर जमीन पर गिरे, आवाज दी बाबा सलाम आखिर ले लो। मैंने इस रिवायतें पढ़ी कि जो भी जख्मी गिरता था सलाम करता था और उसके बाद कहता था आका मेरी मदद को पहुंचे। अकबर जब गिरे कहा बाबा सलाम आखिर ले लो, ये नहीं कहा बाबा मदद को पहुंचो, क्योंकि जानते बाप अकेला है, बाप बूढ़ा है, बाप भूखा प्यासा है। अरे इतने लाशें ला चुका, बस जो ही कहा हुसैन ने कहे लाख अब्बास की शहादत से मेरी कमर टूटी, तुम आंखों का नूर ले गए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हुसैन गिरते पड़ते अकबर के सराहने जा रहे, या अली मदद, या अली मदद, यहाँ तक कि अकबर के सराहने पहुंच गए। अकबर का सर जानू पे रखा, अकबर के सर पे अपने हाथ पे रहे। उधर क्या देखा, अकबर का हाथ है अकबर के सीने पर, अकबर का हाथ है अकबर के सीने पर। हुसैन ने कहा जरा हाथों को तो हटाना, का बाबा रहने दीजिए। अब हुसैन ने हटाया, क्या देखा कि बर्छी का फल अली अकबर के सीने में टूट गया था। बहुत तकलीफ हो रही बाबा। हुसैन ने एक मर्तबा आस्तीन उल्टी, घुटना जमीन पर टेका, जख्म में हाथ डाला, कहा या अली मदद, जो बर्छी का फल खींचा कलेजा बाहर निकल आया, अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने एक मर्तबा खाके करबला सर पे डाली, अल्लाह दुनिया बात कलमा ऐलान अकबर तुम्हारे बाद इस जिंदगानी में खाक है। अब अकबर का लाशा हुसैन से नहीं उठता, कीते हुए लाश है खैमे के करीब पहुंचे। ए अतफाल हुसैनी, ए बच्चों आओ, अकबर का लाशा लेकर जाओ। मौतम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। समझते हो तुम्हें शर्म महसूस होती है कि आका के सामने से कैसे उठ के जाएंगे। लो मैं चिराग खैमा गुल कर देता हूँ, चले जा। बक़यामत आ गई, हुसैन ने चिराग गुल कर दिए, कहा मैंने चिराग गुल कर दिया, चले जाओ। उसके बाद भी जब कोई न गया तो रिवायतें बताती है कुछ गए भी। कुछ रिवायतों में मिलता है कि जो हुसैन के जानिसार थे उन्होंने एक आवाज होके कहा मौला हम आपको मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकते। हुसैन ने कहा लो मैंने बैत उठा ली, अगर तुम चाहो तो मेरे खानदान से किसी अजीज का हाथ पकड़ो, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हाँ अजीजों ने इतना, हुसैन ने इतना मौका फराम किया, सबने एक आवाज होके कहा मौला हमारी जाने आप पर कुर्बान हो, हमें ऐसी 70 जिंदगियां मिले हम आप पर निसार कर देंगे, मगर मौला हम आपको छोड़ कर नहीं जा सकते। उसके बाद हुसैन ने खुतबे के बाद एक मर्तबा महज़र शहादत पढ़ना शुरू किया। बस शहीदों में हबीब का नाम, मुस्लिम इब्न औसजा का नाम, सईद का नाम, ज़ुहैर का नाम, हुर का नाम, हुर के बेटे का नाम, अब्बास और अली अकबर सबका जो नाम लिया, बाजीज और कासिम है कि महज़र शहादत सुनना। एक मर्तबा का चचा महज़र शहादत में मेरा नाम नहीं है, शहीदों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं। हुसैन ने कहा लाल कासिम अरे तुम भी शहीद किए जाओगे, अरे तुम्हारा शिशमा भाई अली असगर भी शहीद किया जाएगा। पर जो ही हुसैन ने ये कहा, कासिम ने कहा चचा क्या लश्कर खैमे में आ जाएगा? हुसैन अरे गैरत बनी हाशिम को जान गए, कहा नहीं लाल असगर मेरे हाथों पे जाएगा, अरे तीरे हुर्मुला से शहीद होगा। एक मंजिल ये बाजीज आने ग्रामी। अब उसके बाद शब आशूर की दूसरी मंजिल देखे, हुसैन खैमे से निकले, अरे करबला के मख्तल की तरफ जा रहे, रात का अंधेरा है, हुसैन तन्हा है। हुसैन ने कदमों की आहट महसूस की, पूछा कौन जो मेरे पीछे चला रहा है? आवाज आई मौला आपका गुलाम हिलाल आ रहा है। इमाम ने कहा हिलाल अरे तुम क्यों मेरे पीछे चले आ रहे हो? कहा मौला रात का अंधेरा है, दुश्मन का लश्कर चारों तरफ फैलाओ। हे मौला मैं इसलिए आया हूं ताकि दुश्मन का कोई तीर आपको ना लग जाए। पर हिलाल को जब इमाम ने देखा जज्बे की कद्र की, मैं कहूंगा ए हिलाल अरे ये शब आशूर थी, अरे तुम तो हुसैन के साथ, अरे जरा आशूर आना, हुसैन तन्हा है, घोड़े पे संभल नहीं पा रहा, जालिमों का तीर है, तलवार नेज़े हुसैन तन्हा,
हिलाल आओ मैं तुम्हें मख्तल दिखा दूं। लेके चले, का हिलाल देख रहे हो, ये वो जगह है जहां मेरा हबीब कत्ल किया जाएगा। आगे बढ़े, का हिलाल ये वो जगह है जहां मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद किए जाएंगे। हिलाल ये वो जगह है जहां मेरे अकबर के सीने पर बर्ची का फल लगेगा। हिलाल ये वो जगह जहां मेरे भाई अब्बास के शाने कदम होंगे। हिलाल ये वो जगह जहां औनो मोहम्मद शहीद होंगे। हिलाल ये वो जगह है जहां मेरा अली असगर मेरे हाथों पे होगा और मुला के तीर से शहीद होगा। फिर लेकर आए नशेब तक, खुदा आपको करबला की जियारत नसीब करे। हुसैन नशेब में पहुंच गए। हुसैन ने कहा, हिलाल इस जगह को देख रहे हो, ये नशेब है, अरे असरे आशूर, अरे इसी नशेब में मुझे कत्ल किया जाएगा। एक टीले की तरफ निगाह पड़ी। हिलाल ने पूछा, ये टीला कैसा है? हुसैन ने कहा, ये टिल्ला ज़ैनबिया कहलाएगा, यहीं से मेरी बहन खड़ी होकर देखेगी और शिब्र होगा, मुझे ज़बह कर रहा होगा, मेरी बहन तड़प रही होगी, मैं कहूंगा ज़ैनब खैमे में चली जा, ज़ैनब बाज़ीज़ाने ग्रामी। हुसैन मख्तल से आ गए खैमे में, यहाँ तक के अब जो सुबह आशूर नमूदार होने को, हाँ नमाज शब हुसैन के खैमे में हो गई। अब सुबह आशूर की अजान का वक्त है। आवाज दी हुसैन ने, पर रिवायतें बताती है अकबर की सिर्फ शक्ल नहीं मिलती थी, बल्कि अकबर की गुफ्तार भी नबी से मिलती थी। हाँ एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए लाल अकबर अजान दे दो, आखिरी बार अजान दे दो। अकबर एक मर्तबा गुलदस्ता अजान पर पहुंचे, अरे फज्र की अजान दी, अल्लाह अकबर, जितने मुसल्ली थे सब अजान को दोहरा रहे, अल्लाह अकबर। अकबर ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अकबर ने अजान पढ़नी शुरू की, हुसैन दोहराते जा रहे। इधर अकबर की अजान तमाम हुई, उधर हुसैन ने दस्ते दुआ बुलंद किया, अजान के बाद की दुआ पड़ी, बस सफेद दुरुस्त हो गई। नमाज फज्र हुसैन के खैमे में अदा होगी। अरे ये वो जमात थी जो आखिरी जमात, जिसमें अब्बास भी मौजूद, अकबर भी मौजूद, कासिम भी मौजूद, हबीब भी मौजूद। अरे जोर आते आते कयामत हो गई। अरे हबीब मारे गए, हुसैन के चाहने वाले शहीद हो चुके थे। अरे कोई सीने पर तीर रोक रहा था, कोई बाजू पे तीर रोक रहा था, लेकिन हाँ जब असर का वक्त आया हुसैन तन्हा रह गया था। मुझे किसी रिवायत ने नहीं बताया, अरे वक्त जोहर किसने अजान दी, वक्त असर किसकी अजान थी। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू मुनक़लिबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन इब्न खलगानी जो उसके बाद